Hello, friends. How are you all? I hope you all are happy. Whenever you see the question of UPSC, आज UPSC का एग्जाम था. It is biggest festival for us. It is biggest festival of India for the students as the students are concerned. तो आज हम लोग यूपीएससी के पैटर्न को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और पेपर को भी देखेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम ज्योग्राफी एंड व्हाट आर द मेथड्स टू यू कैन से दैट कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर ज्योग्राफी एंड what is the trend analysis of UPSC, how the UPSC shift their trend towards geography और कैसे क्या हुआ इन सब पे बात करेंगे. उससे पहले मैं थोड़ी बात आपको कहना चाहूँगा कि यूपीएससी का पेपर अभी जब मैंने क्लास लेने के बाद देखा तो आई फाइंड वन थिंग which is very remarkable कि the UPSC cannot ask the much more things कि बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज पूछ रहा है. दे आर आस्किंग फ्रॉम द बेसिक्स. फर्स्टली वी हैव गो थ्रू द एनसीईआरटीज. एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आर. अभी मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा तो वी विल आइडेंटिफाई कि द क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से ही आ गए हैं. कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल एनसीईआरटी की छपी लाइनें, कभी 6th क्लास की है, कभी 8th क्लास की है, कभी 10th क्लास की है, कभी 12th क्लास की है, तो 11th क्लास की है. इस तरह के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चंस आर वेरी जनरलाइज. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब यूपीएससी का बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत है हमें. सो एक बार हम देखते हैं द हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम ज्योग्राफी एज वेल एज I believe that the geography and environment is inseparable. So the total amount of question from geography as well as environment is 18 plus 13. It is approximately more than 32 क्वेश्चन. 32 क्वेश्चन से ये ज़्यादा है. तो एक बड़ा पोर्शन ज्योग्राफी आपके यूपीएससी के जर्नी में प्ले कर रहा है. इट इज़ बिग रोल प्लेइंग इन ज्योग्राफी इन योर यूपीएससी जर्नी. सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आपको पेपर दिखाता हूँ और सम ऑफ द क्वेश्चन आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ यू. The first question on your screen, the consider the following statement. Statement 1, the atmosphere is heated more. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than the terrestrial radiation. During the offline classes, I always mention the remarkable change how the UPSC twist their language. तो यहाँ देखो क्या लिख दिया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इट इज नॉट करेक्ट because we all are know that the atmosphere is heat up by the terrestrial radiation. Atmosphere is not heat up by top to bottom, it is heat up by bottom to top. That is the remarkable understanding. That is a twisting of UPSC, which is you can say that UPSC is very expertise to twist their language. The second statement, the carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. It is good. It is This statement is correct. The carbon dioxide and other greenhouse gases. What is the character of carbon dioxide? To trap the heat. करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज डी. द स्टेटमेंट 1 is incorrect and the statement 2 is correct. We will further move to another question. Considering the following statement, statement 1, thickness of troposphere at the equator is much greater as compared to poles. During the offline classes, I always focus on that type of change in question. कि देखो क्या पूछ रहा है, thickness of troposphere at the equator is much greater than compared to poles. It is right. Why the thickness of troposphere vary from poles to the equator? Because of the insolation. You know that in the polar region, the slantiness of sun rays increases. In the equator, the sun rays are perpendicular fall down, vertical fall down, straight fall down. That is why the you can say that near the equator, the earth is heat up and the strong convectional currents are rising up to the height of 18 kilometer. Okay, I hope you all are remembering this. And the second statement, at the equator, heat is transported to great heights by the strong convectional currents.
It means both the statements are correct, and the statement second is the explanation of first statement. तो ये भी सही है। आपको देखना है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं, these all the questions are asking from your notes। ऑफलाइन क्लासेस के दौरान जो भी हमने डिस्कस किया वही आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पायरोक्लास्टिक डेवरिस, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द एबो आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वल्केनिक eruption? ऑल फोर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वल्केनिक eruption। कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना था आपको, सिंपली यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स। कई बार हम लोगों ने इस पे ऑफलाइन में नोट्स में लिखवाया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट, which one of the following countries are well known as to largest cocoa producer in the world? तो दो ही हैं, ये तो बहुत फैक्ट है। आइवरी कोस्ट एंड घाना एज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोआ। मैप में ये सब आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following? Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? तो देखिए, ये हम लोग हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करते रहते हैं कि ये देखिए आपके पास गंगा का मैप है, घाघरा, घाघरा, ये क्वेश्चन पूछा है, घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। वी अगेन बैक टू दी आवर कुछ कुछ टाइम लग रहा है भाई, टेक्नोलॉजी है। तो क्या कह रहा है इधर देखो, इसमें क्या स्टेटमेंट सही होना चाहिए था कि गोमती, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, next question is, consider the following statement. Rainfall is one of the reason of weathering of rocks. Rainfall is the biggest reason of weathering of rocks, erosion of rocks. And the second, the rainwater contains carbon dioxide in solution. तो both the statements are correct, पर आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि which one of the following is correct in respect to above the statement? Both statements second and third. The third statement is also, the third statement is rainwater contains atmospheric oxygen, some amount of, some amount of. The both statements second and third are correct, and both them explain the first. Yes, A option is right. Consider the following countries. Countries and question from map. How many of the above countries have border with North Sea? तो जिसको भी मैप याद होगा कि नॉर्थ सी वाला, उसको पता होगा कि नॉर्थ सी में क्या है भाई। नॉर्थ सी में रशिया नहीं करता, फिनलैंड नहीं करता। वी हैव टू ऑप्शन, 2 and 3, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2। हम लोगों के पास देखिए कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो इजीली हो सकते हैं आपसे। कह रहा धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल इन नर्मदा। ये इट इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। धुआंधार वाटरफॉल इन नर्मदा, दिस इज द राइट क्वेश्चन, बट रीजन इज नॉट मालवा। इट इज, you can say that after Jabalpur gap, Chhundru waterfall, Chota Nagpur plateau, Subarnrekha, it is good. Garsoppa waterfall, Jung waterfall, or the Mahatma Gandhi waterfall, Western Ghat and river is not correct. So 1 and 3 is not correct, only 1 is right answer. यूपीएससी कुछ तो टफ करेगा ना, तो थोड़ा ट्रिकी तो बनाएगा ही आपके लिए क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कितना सिंपल था। सेंट्रल एशिया, जिसको पता है कि वॉसजेस यूरोप में है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। फोल्डेड माउंटेन है, नहीं, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। यूरोप में एल्प्स है, ठीक है, पर इट इज नॉट ब्लॉक माउंटेन, इट इज फोल्डेड माउंटेन। तो बोथ द 1 and 2 इज रॉन्ग। नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियन, एप्लेशियन इज अ फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। साउथ अमेरिका एंडीज फोल्डेड माउंटेन, 2 and 3, only 2, only 2। Next, consider the following airports
देखिए भाई, अरुणाचल में डुंडी पोलो एयरपोर्ट के बारे में पूछा है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछा है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछा है। कह रहे हैं इन द रिसेंट पास विच ऑफ एबो हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो कह रहा है कि डुंडी पोलो, कुशीनगर, बोथ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? इट इज अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ेगा तो वाटर वेपर का अमाउंट घटेगा, बिल्कुल सही बात है। ठंडा होगा दे रिड्यूस, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर वेपर घट जाएगा। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, नहीं, because its percentage is controlled by the insolation. The insolation is maximum at the near the equator, तो मैक्सिमम इक्वेटर पे होगा, तो दूसरा गलत, पहला सही। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से बिल्कुल सिंपल सिंपल से आए हैं। विच विथ रेफरेंस ऑफ, ये आपको आईबी के चैनल पे जाके ये वीडियो देखना है, मैंने डाला है पहले से। विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? तो वो कैसा एकदम क्वेश्चन कॉपी से आ रहा है। इट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन विंड वेलोसिटी, जितना विंड वेलोसिटी होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज absent एट द इक्वेटर, बिल्कुल सही है। कोरियोलिस फोर्स इज absent और द निग्लिजिबल अमाउंट, बिकॉज कि रोटेशनल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑन जून, देखो ये कितना सिली सा क्वेश्चन है। ऑन जून 21, on June 21 every year which of the following latitudes experience sunlight of more than 12 hours? तो आपको कितनी बार पढ़ाया गया कि इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बेसिक से ही हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्या कह रहा है? एक्सपीरियंसिंग, तो इसमें ओनली वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ज्योग्राफी से हो गए, और ये यूपीएससी है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो इट मींस यू क्रैक द एग्जाम। फिर क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल peatland which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate। तो क्या है? अमेजन बेसिन। नंबर 17 क्वेश्चन, अब यहाँ तो भाई हमारा नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी से और क्या हैं क्वेश्चंस। यू हैव टू वेट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी के ही। हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके लिए ये सब देखना है हमें कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास नोट्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम डिस्कशन। क्योंकि आप जानते हो कि सेट ए है, इसमें अलग अलग जगह क्वेश्चंस दिए होते हैं। ये हमारे पास सारा पेपर है, तो हमें देखना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चंस आर फ्रॉम भी, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं कुछ। कुछ हमारे पास, अब देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया and South Africa. Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates and aging population of decline the population? देखो इसमें क्या है, जापान एंड साउथ कोरिया और इटली अभी रिसेंटली शामिल हुआ है इसमें, तो ये तीन है। 134 जिसमें भी होगा, 134 इज फर्स्ट ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि
सीधे आपके ज्योग्राफी से, बेसिक से एक क्वेश्चन और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जो मैप से सीधे है, बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम 6 क्लास एनसीईआरटी, 6 क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अब आप इसी से समझ लो कि यूपीएससी आपसे कितने, देखो, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज, 49 पैरेलल लाइन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं आपको एक बार करा चुका हूँ क्लास में क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि आप एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करें, आप अपने नोट्स को एनालाइज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फेथ करें आईबी पे कि जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर एग्जामिनेशन, वो सब आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।